In this lecture, we will discuss about the composition of chromosome. In the previous slide, in the previous lecture, we have discussed about the structure of the chromosome. This chromosome is a compact form of the DNA. The DNA fit inside the cell in the form of the chromosome. In this lecture, we will focus on how the chromosome is made, or how DNA is fit or package itself in the form of chromosome. This lengthy DNA having the 3 billion nucleotide in the humans, this DNA pack itself in the chromosome. इस क्रोमोसोम में इसने अपने आप को पैक किया. अब ये क्रोमोसोम सिर्फ डीएनए पे कंपोज नहीं कर रहा, इसके साथ अदर कंपोनेंट्स में मौजूद हैं. द कंपोनेंट्स ऑफ द क्रोमोसोम आर डीएनए 40%, proteins 50 to 60%. Along with the DNA and proteins, RNA is also present inside in the chromosome, and metallic ions like the calcium ions and magnesium ions are also present in the chromosome. These metallic ions maintain organization of chromosome intact. chromosomes को intact रखते हैं ये metallic ions as a cofactor के तौर पर काम करते हैं. Now starting from one by one, DNA. DNA is a hereditary material. It controls all the activities of the cell and it is mainly present in the form of the chromosome. जितनी भी activities हैं cell में सारी की सारी DNA control कर रहा है. The product of the DNA is the proteins. How the DNA expresses itself. The DNA that is present inside the nucleus, this DNA will form a RNA after transcription. Transcription के बाद ये बनाएगा RNA. This RNA will translated into the protein. This is the central dogma of molecular biology. हमने इस DNA को क्या करना है? इस DNA को हमने प्रोटेक्ट करना है. तो ये DNA किस फॉर्म में प्रोटेक्ट होगा? ये DNA प्रोटेक्ट होगा in the form of the chromosome. So DNA is the most important component of the cell. अगर किसी सेल में DNA मौजूद नहीं है तो वो सेल सर्वाइव नहीं कर सकेगा. क्यों? सेल की जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो सारी डीएनए कंट्रोल कर रहा है. डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए से प्रोटीन बनेगी. तो डीएनए से आरएनए बनने के प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन. क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन. एंड द प्रोसेस दैट ट्रांसलेट द आरएनए टू प्रोटीन, दैट इज कॉल्ड ट्रांसलेशन. दिस इज कॉल्ड ट्रांसलेशन. दिस इज सेंट्रल डॉगमा ऑफ द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी. अब how we can say that this DNA is the very important. Now we can say that DNA is a very important component of the cell. तो इसी DNA को हमने पैक करना है क्रोमोसोम में. तो क्रोमोसोम का मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या हो गया? क्रोमोसोम का मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हो गया DNA. DNA stands for deoxyribonucleic acid. पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स है, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड इसमें अटैच होते हैं. अब ये जिस तरह हमें नजर आ रहा है, शुगर, फास्फेट और ये नाइट्रोजनस बेस, ये एक न्यूक्लियोटाइड बनेगा. अब दूसरा न्यूक्लियोटाइड, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड बनेगा. ये सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में अटैच हो रहे हैं. इट विल बी डिस्कस इन द स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए इन वेरी मच डिटेल. ये सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में अटैच होकर क्या बन जाएंगे? पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर बन जाएंगे. ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर है डीएनए. दिस डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड and this DNA are of two types in the chromosome. Number one, the unique DNA that is having only single copy. जब DNA के पास single copy उसको बोलेंगे unique DNA. और repetitive DNA have repetition. इसमें भी moderate repetition है या high amount of repetition है. Some केस में repetition बहुत ज़्यादा होती है, some केस में moderate होती है. तो 30% of DNA is repetitive. This DNA has to pack itself in the chromosome. So DNA is the double helix, polynucleotide, and two types unique DNA, single copy and repeated DNA. 30% of DNA it may be different double copies हो सकती हैं उसकी. Proteins of the chromosome. DNA के साथ proteins compact होंगी तो structure मजीद डेवलप होगी. उसके बाद उस के साथ मजीद उसमें कॉइलिंग होगी, फिर हमारे पास पूरा क्रोमोसोम बनेगा. वो स्टेजेस हम डिस्कस करेंगे डिटेल से. तो प्रोटीन्स ऑफ द क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ टू टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स. नंबर वन हिस्टोन प्रोटीन और नंबर सेकंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स. तो प्रोटीन कितनी टाइप्स की हैं? प्रोटीन टू टाइप्स की हैं, हिस्टोन प्रोटीन्स और नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स. अब हिस्टोन प्रोटीन्स को हम डिस्कस करेंगे. सबसे हिस्टोन प्रोटीन्स, दीज आर द डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स. हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन, ये वो प्रोटीन्स होती हैं जिनके साथ डीएनए अपने आप को बाइंड करता है. तो हिस्टोन प्रोटीन्स आर द डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स. ये सर्कुलर प्रोटीन्स होती हैं. 8
की फॉर्म में होती हैं, हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे इसको। इसकी भी फर्दर दो टाइप्स होती हैं हिस्टोन प्रोटीन्स की। तो हम सिंपली कह सकते हैं हिस्टोन प्रोटीन्स आर द डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन। वो प्रोटीन जिनके गिर्द हमारा डीएनए बाइंड करते हैं उनको बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन्स। हिस्टोन वर डिस्कवर्ड इन 1884 बाय अल्बर्ट कोसेट। द वर्ड हिस्टोन डेट्स फ्रॉम द लेट 19th सेंचुरी एंड इज फ्रॉम द जर्मन हिस्टोन ऑफ अनसर्टेन ओरिजिन। इसकी ओरिजिन मालूम नहीं है, परहैप्स शायद ग्रीक हिस्टेनी और फ्रॉम हिस्टोस। हिस्टोन्स आर फाउंड इन द न्यूक्लियाई ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल का जो क्रोमोसोम है उसमें हिस्टोन प्रोटीन्स मौजूद होंगी। एंड इन द आर्की इज अ टाइप ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स, ये डिटेल्स हम डिस्कस करेंगे, नेमली यूरियार्की, इसमें हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं, बट नॉट इन बैक्टीरिया। लेकिन बैक्टीरिया में हिस्टोन प्रोटीन मौजूद नहीं होती। आर्किल हिस्टोन्स में वेल रिजेंबल द एवोल्यूशनरी प्रिकर्सर्स टू यूकैरियोटिक हिस्टोन। जो आर्की की हिस्टोन्स हैं वो यूकैरियोटिक हिस्टोन के साथ रिजेंबल्स करती हैं। हिस्टोन्स प्रोटीन्स आर ऑफ टू टाइप्स। इसको हिस्टोन्स को हमने अगेन दो टाइप्स में एक्सप्लेन किया। पहले हमने डीएनए, फिर हमने प्रोटीन्स की बात की, फिर हमने उसके साथ बात की आरएनएस की बात की, फिर मेटालिक आयंस की बात की, फिर हमने डीएनए की डिस्कस किया, फिर हमने प्रोटीन्स के बारे में बात की। प्रोटीन दो टाइप्स की होती हैं, एक हिस्टोन प्रोटीन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन। अब हिस्टोन प्रोटीन्स की भी दो टाइप्स हैं। हिस्टोन प्रोटीन आर ऑफ टू टाइप्स, नंबर वन कोर हिस्टोन एंड नंबर सेकंड लिंकर हिस्टोन्स। कोर हिस्टोन्स आर H2A, H2B, H3 एंड H4। ये जो 4 हिस्टोन्स हैं ये कोर हिस्टोन के तौर पर काम करती हैं। ये कोर हिस्टोन क्यों? कि ये बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट बना रही हैं न्यूक्लियोसोम का या जो क्रोमोसोम्स का। दैट्स व्हाई दीज आर द core histone proteins. Core histone proteins, these are the basic proteins. ये core histone protein, each core histone protein present in the pair H2A दो होंगी, H2B भी विल बी 2, H3 भी दो होंगी, H4 भी दो होंगी। ये चार बन जाएंगी, ऑक्टामर बन जाएगा। ये ऑक्टामर जब इसके गिर्द डीएनए रैप होगा तो वो बन जाएगा न्यूक्लियोसोम। क्या बन जाएगा? न्यूक्लियोसोम बन जाएगा। तो हम देख सकते हैं ये 8 प्रोटीन के गिर्द हमारे पास जो डीएनए आपने आपको क्या किया, कॉइल किया, ये न्यूक्लियोसोम बन गया। क्या बन गया? न्यूक्लियोसोम बन गया। तो अब ये न्यूक्लियोसोम बन गया, इसमें सेंट्रल हिस्टोन प्रोटीन है और दरमियान में लिंकर हिस्टोन प्रोटीन है। तो हिस्टोन प्रोटीन, कोर हिस्टोन प्रोटीन कितनी है 4, लेकिन पेयर में तो कितनी बन जाएंगी? 8 बन जाएंगी। वो 8 क्या बनाएंगी? वो 8 ऑक्टामर बनाएंगी। क्या बनाएंगी? ऑक्टामर बनाएंगी। ईच हिस्टोन प्रोटीन इज प्रेजेंट इन पेयर। These proteins assemble to form one octameric nucleosome core particle and 147 base pairs of DNA wrap around this core particle 1.75 ton। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो 8 हिस्टोन प्रोटीन्स हैं उनके गिर्द 147 बेस पेयर डीएनए अपने आप को रैप करेगा और उसकी टर्न कितनी होगी? उसकी टर्न होगी 1.75 1.80। ये 8 हिस्टोन प्रोटीन है। मैं कहता हूँ ये 1 2 3 4, तो ये 4 किससे, ये 8 किससे, इसकी भी 2 हैं, ये भी 2 हैं, ये भी 2 हैं और ये भी 2 हैं, ये 8 बन जाएंगे। ये बन जाएगा ऑक्टामर। इसका डीएनए अपने आप को रैप करेगा। ये 1 राउंड हो गया और जो दूसरा राउंड हो वो कंप्लीट नहीं होगा। वो क्या होगा? 1.75 टन है, ये 1.75 टन है, नॉट द 2 कंप्लीट टन। समटाइम इट इज रिटन इन द 1.80। तो 147 न्यूक्लियोटाइड अपने आप को रैप करते हैं एक ऑक्टामेर के गिर्द और उसकी टर्न कितनी होती है? 1.75 टर्न होती है। ओके, कोर हिस्टोन प्रोटीन्स H2A, H2B, H3 एंड H4 ये चारों पेयर्स में होंगी, ये बनाएंगी ऑक्टामर। उन ऑक्टामर के डीएनए का 147 बेस पेयर अपने आप को रैप करेगा और उसका टाइमिंग क्या होगी? उसकी टाइमिंग होगी 1.75 टर्न। जो दूसरी प्रोटीन है नॉन हिस्टो लिंकर प्रोटीन, उसको बोलते हैं H1 प्रोटीन होती है। H1 इज द लिंकर प्रोटीन। H1 इज द लिंकर प्रोटीन जो दो न्यूक्लियोसोम को आपस में अटैच करती है। सो वेरी गुड एक्सप्लेनेशन। हिस्टोन प्रोटीन्स डायग्राम में देख सकते हैं H2A, H2A 2 हैं, H2B, H2B 2 हैं, H4 2 हैं, H3 these are also 2। तो ये कितने बन गए? कोर ऑफ 8 हिस्टोन प्रोटीन्स। ये सारी कितनी प्रोटीन्स बन गई? इन्होंने हिस्टोन प्रोटीन का कोर बनाया और कितने? 8 हिस्टोन प्रोटीन्स बन गई। जो H1 है वो लिंकर प्रोटीन के तौर पर काम करेगी। सो these are the core proteins and H1 is the linker protein। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि जो हिस्टोन प्रोटीन्स हैं इनकी कंपोजिशन केमिकली क्या है? हिस्टोन प्रोटीन्स आर केमिकली अल्कलाइन बेसिक प्रोटीन्स। केमिकली अल्कलाइन बेसिक प्रोटीन बिकॉज दे हैव a very basic amino acid that are called arginine and lysine। arginine and lysine। so basic proteins हैं arginine और lysine rich amino, इसमें amino acid arginine और lysine होते हैं। that's why histone proteins are positively charged proteins।
सो रिपीट कर देते हैं, केमिकली हिस्टोन प्रोटीन्स आर अल्कलाइन बेसिक प्रोटीन्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ टू अमीनो एसिड arginine and lysine, because these amino acids are basic and they have the positively charge. Histones are positively charged proteins because histones are rich in basic amino acids that are arginine and lysine. So histone positive, DNA negative. Negative क्यों है DNA? DNA is negative because of the presence of the phosphate. अब positive negative interaction करेंगे, histone protein act like a magnet bar for the attachment of the DNA molecule. So in this slide we have discussed chemical histone proteins are basic proteins because of the presence of the arginine and lysine. We have also discussed there are 8 proteins, octamer histone proteins are present in the form of octamer, each protein present in the form of pair. These proteins are called the core protein, and this H1 is called the linker protein. Histone proteins are among the most highly conserved proteins in the eukaryotes, emphasizing their important role in the biology of the nucleus. Core histones are highly conserved proteins. That is, there are very few differences among the amino acid sequence of the histone proteins of different species. ये conserved हैं, ये इनमें जो different species की जो core histone proteins हैं उनमें बहुत minor difference है, बहुत स्मॉल डिफरेंस है. लिंकर हिस्टोन प्रोटीन्स यूजुअली मोर देन वन फॉर्म, इनकी बहुत सी फॉर्म मौजूद होती हैं विद इन स्पीशी एंड इज आल्सो लेस कंजर्व देन द कोर हिस्टोन प्रोटीन कंजर्व होती है क्योंकि उनमें सिमिलरिटी ज्यादा है, इनमें सिमिलरिटी नहीं है, दैट्स व्हाई दीज आर द लेस कंजर्व्ड प्रोटीन्स. तो कोर प्रोटीन कौन सी होती हैं वो हमने डिस्कस कर चुके हैं. चार हिस्टोन प्रोटीन, चार जो हिस्टोन प्रोटीन है वो कोर है, और H1 जो क्या है वो लिंकर प्रोटीन है जो लिंक करती है दो न्यूक्लियो सोम्स को आपस में. द डिस्कवरी ऑफ H5 हिस्टोन अपीयर्स टू डेट बैक इन 1970s and it's also classified in the group 1. There are some variant form of histone proteins. For example, they share amino acid sequence homology and core structurally similarity to a specific class of major histones, but also have their own feature that is distinct from the major histone. It means कि histone proteins की कुछ variations form भी मौजूद होती हैं, उनका जो sequence homology है और structural similarity वो एक जैसी है, लेकिन उसमें कुछ उसकी उनके अपनी features भी हैं उन जो histone proteins की हैं. These minor histones usually carry out specific functions of the chromatin metabolism. ये जो minor proteins हैं जो modified form है histone proteins की, ये chromatin metabolism में बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करती हैं. For example, histone H3 like that is SYNP-A is histone only associated with the centromere region of the chromosome. Histone 2A variant H2AZ. H2AZ is the variant form of histone 2A is associated with the promoters of actively transcribed region and also involved in the prevention of spread of the silent heterochromatin. उस silent heterochromatin को क्या करता है वो उसकी prevention को भी दूर करता है. Another H2A variant H2AX binds to the DNA with the double stranded breaks and marks the region undergoing DNA repair. Non-histone proteins. So we have discussed histone proteins की दो टाइप्स हैं, histone proteins और non-histone proteins. Histone proteins की हमने दो टाइप डिस्कस की, that was the core proteins and the linker proteins. फिर हम जा रहे हैं अभी non-histone proteins. Now we are going to discuss non-histone proteins. Non-histone proteins are acidic proteins. Histone proteins basic proteins थी और non-histone proteins क्या है? Acidic proteins हैं and have been considered most important than histone and as regularly molecules. Some non-histone proteins have enzymatic activity. ये enzymatic activity इनकी regulation activity है. For example, most important non-histone proteins are phosphoproteins, DNA polymerase that is responsible for DNA replication, RNA polymerase responsible for the transcription synthesis of the messenger RNA and other types of RNA, and nucleoside triphosphatase. These are also the proteins present with the chromosome. These are called non-histone proteins, these are also called regulator proteins. The nucleosome and the beads on the stem. जो क्रोमोसोम है जो डीएनए है वो अपने आप को किसके गिर्द कॉइल करेगा? हिस्टोन प्रोटीन के गिर्द कॉइल करेगा. हिस्टोन प्रोटीन के जब कॉइल करेगा उसको बोलेंगे न्यूक्लियोसोम. सो हम कह सकते हैं न्यूक्लियोसोम are the fundamental organizational unit of eukaryotic chromatin.
क्रोमेटिन की बात की है, क्रोमोसोम नहीं। क्रोमेटिन का जो फंडामेंटल ऑर्गेनाइजेशन यूनिट है वो क्या है, न्यूक्लियोसोम है। द न्यूक्लियोसोम द बीड्स ऑन स्टिंग, इट्स जस्ट लाइक द बीड्स ऑन द स्टिंग, स्टिंग पे बहुत से बीड्स लगे होते हैं जैसे, उसकी ये रिजेम्बलेंस दे रहा है। द टर्म न्यूक्लियोसोम काइंड बाय पी ऑडिट, ईच chromatin fiber consists of a DNA helix coiled around 8 histone molecules like loop. Such complex is called nucleosome. Such complex is called nucleosome and resembles a bead on the string. जब जो ऑक्टामेर है, जो हिस्टोन प्रोटीन्स का ऑक्टामेर है, उसके गिर्द जब न्यूक्लियो डीएनए का अपने आप को राउंड करेगा, और वो राउंड में हम डिस्कस कर चुके हैं 147 न्यूक्लियोटाइड 1.80 या 1.75 टन जब रैप करेगा, दैट इज अ न्यूक्लियोसोम। दीज न्यूक्लियोसोम पैक टाइटर ड्यूरिंग कंडेंसेशन रिक्वायर्ड टू गेट मेटाफेज, ये टाइट होंगे मजीद और फिर उसके बाद क्रोमेटिन बन जाएगा। द बेसिक रिपीट एलिमेंट्स ऑफ क्रोमेटिन इज द न्यूक्लियोसोम। क्रोमेटिन में बेसिक रिपीट क्या है, जिसे मैंने डिस्कस किया, द फंडामेंटल ऑर्गेनाइजेशन यूनिट ऑफ द क्रोमेटिन इज द न्यूक्लियोसोम, इंटरकनेक्टेड बाय द सेक्शन ऑफ लिंकर डीएनए far short arrangement than the pure DNA in solution। ये लिंकर डीएनए से आपस में कनेक्ट होते हैं सारे प्रोटीन्स के। In addition to the core histone, there is a linker histone, that's the H1, which contacts the exit or entry of the DNA strand on the nucleosome। ये उसको एंट्री और एग्जिट के तौर पर काम करता है H1। The nucleosome core particle together with the histone H1 is known as chromatosome। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसोम क्या है, जब 8 हिस्टोन प्रोटीन जो ऑक्टामेर है उनके गिर्द जब डीएनए अपने आप को रैप किया, 147 बेस पेयर ने या 146 बेस में अपने आप को रैप किया 1.75 और 1.80 टर्न्स के साथ, तो दिस दैट इज कॉल्ड द न्यूक्लियोसोम। लेकिन जब उसके साथ H1 मिल जाएगा न्यूक्लियोसोम के साथ, दैट इज कॉल्ड क्रोमेटोसोम। दैट इज कॉल्ड क्रोमेटोसोम। द न्यूक्लियोसोम कोर पार्टिकल टुगेदर विद हिस्टोन H1 is known as the chromosome। Nucleosome within 20 to with about 20 to 60 base pairs of linked DNA can form under non-physiological condition and approximately 10 nanometer beads on the string fiber। So बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो न्यूक्लियोसोम है उसका साइज 10 नैनोमीटर, 10 to 11 नैनोमीटर, डीएनए का साइज 2 नैनोमीटर, अब न्यूक्लियोसोम का साइज 10 नैनोमीटर। अब ये मजीद जाएगा, अपने आप को कॉइल करेगा, दैट 30 नैनोमीटर, 30 नैनोमीटर अगेन कॉइलिंग होगी 300 नैनोमीटर, 300 अगेन कॉइलिंग होगी 700 मीटर एंड देन 1400 नैनोमीटर। वो फर्दर स्लाइड में उसको डिस्कस करेंगे। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन के डीएनए अपने आप को क्या किया, रैप किए हुए, क्या किए हुए, रैप किए हुए, हिस्टोन कोर ऑफ द न्यूक्लियोसोम एंड लिंकर डीएनए ऑफ द, ये लिंकर डीएनए है। ठीक है, मजीद इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, मजीद एक्सप्लेनेशन, ये 8 हिस्टोन प्रोटीन हैं। देखिए H2A, H2 आप ए, ये 2 हैं, H2B, H2B 2 हैं, H3, H3, H4, H4, ये 8 हिस्टोन प्रोटीन। इनके डीएनए ने आपको कैसे रैप किए हुए, डीएनए अपने आप को रैप किए हुए, एक कंप्लीट टर्न हो रहा है लेकिन दूसरा कंप्लीट टर्न नहीं हो रहा है। देखिए पूरी जगह एम्प्टी है, सो इट इज 1.75 टर्न। ये दूसरे न्यूक्लियोसोम के साथ जाकर इस तरह बाइंड, ये दरमियान में कौन सा रीजन है, लिंकर रीजन, जहां पे क्या होगा, जहां पे होगा H1 प्रोटीन और साथ लिंकर डीएनए। दिस इज कॉल्ड अलोंग द न्यूक्लियोसोम अलोंग विद H1 इज कॉल्ड क्रोमेटोसोम। जो पिछली स्लाइड में डिस्कस कर चुके हैं। इसका साइज कितना होता है, इसका साइज होता है 10 to 11 नैनोमीटर। न्यूक्लियोसोम के क्या साइज है, 10 to 11 नैनोमीटर। बनता कैसे है, स्टोन प्रोटीन के गिर्द डीएनए जब रैप करेगा 1.75 रैप होगा, उसको हम क्या कहेंगे, 146 न्यूक्लियोटाइड जब रैप होंगे उसको बोलेंगे न्यूक्लियोसोम। साइज कितने, 10 to 11 नैनोमीटर, 10 to 11 नैनोमीटर। न्यूक्लियोसोम 8 हिस्टोन प्रोटीन प्लस 146 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स ऑफ डीएनए। हिस्टोन डीएनए इंटरेक्शन कैसे होती है, अब डीएनए और हिस्टोन आपस में कंबाइन मिलते कैसे हैं, चूंकि हिस्टोन प्रोटीन्स क्या है, नेगेटिव, सॉरी हिस्टोन प्रोटीन पॉजिटिव चार्ज है, डीएनए नेगेटिव चार्ज है, दोनों आपस में क्या, उनका स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। दोनों जो हिस्टोन प्रोटीन है, हिस्टोन प्रोटीन एक्ट लाइक ए मैग्नेट बार टू अटैच फॉर द अटैचमेंट ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल ऑन इटसेल्फ। So there are two non-covalent interaction are key player of histone DNA interaction. Number one, electrostatic interaction that allows recruitment of histone proteins or negatively charged back of DNA. हिस्टोन प्रोटीन आर पॉजिटिव एंड डीएनए नेगेटिव, दोनों आपस में क्या करेंगे, कंबाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरेक्शन बिटवीन डीएनए एंड द हिस्टोन प्रोटीन्स। द एंड टर्मिनल ऑफ द अमीनो एसिड सेरोनिन, थ्रेओनिन एंड द टायरोसिन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद द नाइट्रोजन बेसिस ऑफ डीएनए। ये तीन जो है अमीनो एसिड, ये नाइट्रोजन बेसिस के साथ क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, फेवरिंग स्टेबिलिटी ऑफ हिस्टोन डीएनए इंटरेक्शन। ये भी एक इंटरेक्शन है। सो टू टाइप ऑफ इंटरेक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। 30 नैनोमीटर फाइबर्स,
वी हैव डिस्कस डीएनए 2 नैनोमीटर। जब डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के गिर्द रैप करेगा 10 नैनोमीटर, अब वो 10 नैनोमीटर मजीद रैप होगा, उसमें कॉइलिंग होगी, वो 30 नैनोमीटर क्रोमेटिन फाइबर बन जाएगा। ये क्रोमेटिन फाइबर मजीद रैप करेगा तो 300, फिर 700, फिर 1400 बन जाएगा क्रोमोसोम। विद एडिशन टू ऑफ H1, the beads of string structure in turns coil into 30 nanometer diameter helical structure known as 30 nanometer fibers or filament। जब एडिशन होगी H1 की, वो जो न्यूक्लियोसोम के साथ है क्रोमेटोस्टोम बन गया, वो मजीद कॉइल होगा, उससे कितना स्ट्रक्चर बन जाएगा 30 नैनोमीटर का फाइबर, दैट इज आल्सो कॉल्ड फिलामेंट। द प्रिसाइज स्ट्रक्चर ऑफ द क्रोमेटिन फाइबर इन द सेल इज नॉट नोन इन डिटेल एंड देयर इज स्टिल सम डिबेट अबाउट दिस। देयर आर डिफरेंट मॉडल्स, जिगजैग मॉडल है, सिलिनॉइड मॉडल है, वो डिस्कस करना यहाँ पे जरूरी नहीं है। Folded fiber model is the most accepted model of the chromatin fiber construction। folded fiber model जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये भी folded fiber model है। The existing model commonly accept that the nucleosome lies perpendicular to the axis of the fiber। ये perpendicular exist करते हैं with the linker stone arranged internally। A stable 30 nanometer fiber relies on the regular positioning of the nucleosome along DNA। A stable 30 nanometer fiber relies on the regular positioning of nucleosome along DNA। Linker DNA is relatively resistant to the bending rotation। ये उस bending rotation को क्या करते हैं, resist करते हैं। This makes the length of linker DNA critical to the stability of the fiber, requiring nucleosome to be separated by lengths that permit rotation and folding into required orientation without excess stress to the DNA। ये DNA को स्ट्रेस किए बगैर जब इसकी जरूरत होती है तब ये ओरिएंट करता है, वैसे इसकी जरूरत नहीं होती। क्रोमेटिन कंपोजिशन समरी है। हिस्टोन H2 H2 H1 सॉरी H1 H2A H2B H3 and H4 ये हिस्टोन प्रोटीन्स हैं। इसमें ये जो चार हैं ये कोर है, ये लिंकर प्रोटीन है, ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स आ गई। नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स में ये नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन है और रेगुलेशन प्रोटीन्स हैं। उसमें हमने आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज और फॉस्फेटेज पढ़े। न्यूक्लियोसोम क्या है, डीएनए प्लस हिस्टोन एक्सेप्ट H1। न्यूक्लियोसोम में H1 नहीं होगा, जब H1 होगा तो क्या बन जाएगा, क्रोमेटोसोम बन जाएगा। ओके, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स नेगेटिव चार्ज है, हिस्टोन प्रोटीन आर्जिनिन और लाइसिन रिच है, पॉजिटिव चार्ज है, डीएनए और आरएनए, ये सारा क्या बन जाएगा, क्रोमेटिन बन जाएगा। क्रोमेटिन आर ऑफ टू टाइप्स। इंटरफेस में जो क्रोमेटिन नजर उसकी दो टाइप्स होती हैं। ड्यूरिंग इंटरफेस द पीरियड ऑफ सेल साइकिल व्हेन the cell is not dividing, that is called interphase phase, that is called interphase। two types of chromatin can be distinguished। remember दो types of chromatin होते हैं। number one euchromatin and number second heterochromatin। euchromatin, that is a true chromatin which consists of DNA that is active, that is being expressed and form the proteins, that is called the euchromatin। Heterochromatin, which consists of mostly inactive DNA, it seems several serve structural purpose during the chromosome stage। इसको हम heterochromatin बोलते हैं जो एक्सप्रेस नहीं होता। सेंट्रोमियर है, euchromatin एक्सप्रेस होगा, और ये जो पोर्शन आपके पास है ऑरेंज कलर रीजन इंडिकेट हेटेरोक्रोमेटिन। कौन सा क्रोमेटिन, हेटेरोक्रोमेटिन। अब हेटेरोक्रोमेटिन की मजीद दो टाइप्स हैं। Heterochromatin can further distinguish into two types। number one, constitutive heterochromatin and facultative heterochromatin। constitutive heterochromatin never express, which never express, कभी भी express नहीं होगा। it is located around the centromere and usually contain repetitive sequences 1, 9, 16 and Y। ये constitutive chromosome constitutive heterochromatin मौजूद होते हैं। facultative heterochromatin which is sometimes express, sometimes ये express कर सकते हैं। इस तरह बार बॉडी की एग्जांपल है इन द bar body in the egg of the female, that is the facultative hetero। summary of the whole discussion that we have discussed। chromosome structure क्या है, DNA 2 nanometer। this DNA coil itself around the histone proteins। histone proteins octamer हैं, उनके गिर्द अपने आपको ये कॉइल करेगा 1.75 टन 146 न्यूक्लियोटाइड, ये बन जाएगा न्यूक्लियोसोम, पोस्ट न्यूक्लियोसाइम, ये भी न्यूक्लियोसोम 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 न्यूक्लियोसोम। साइज कितना हुआ 11 नैनोमीटर, 10 to 11 नैनोमीटर। जब न्यूक्लियोसोम आपस में मजीद कंपैक्ट होंगे, बहुत से न्यूक्लियोसोम मजीद कंपैक्ट होंगे, दैट इज कॉल्ड द क्रोमेटिन। क्या होगा, क्रोमेटिन। साइज कितने, 30 नैनोमीटर। मजीद जब क्रोमेटिन आपस में कंपैक्ट होगा क्या बन जाएगा, क्रोमेटिन लूप्स। क्रोमेटिन लूप्स 300 नैनोमीटर। जब मजीद कॉइलिंग होगी उसकी, दैट 700 नैनोमीटर, कंडेंस क्रोमेटिन लूप्स। ये कंडेंस क्रोमेटिन इट इज अ थिन फॉर्म, और जो क्रोमोसोम है दैट इज अ थिक फॉर्म, दैट इज 1400 नैनोमीटर। सो डीएनए 2 नैनोमीटर, न्यूक्लियोसोम 10 to 11 नैनोमीटर, और क्रोमेटिन 30 नैनोमीटर, क्रोमेटिन लूप्स 300 नैनोमीटर, और कंडेंस क्रोमेटिन 700 नैनोमीटर, और क्रोमोसोम 1400 नैनोमीटर। दिस इज द एक्चुअल कंपोजिशन ऑफ द chromosome, this actual chromosome।
What is looping? What is called supercoiling? ये telephone wire, this is the only coil. When it coil around its own self, that is called the supercoil. That is called the supercoil. Similarly, DNA after coiling with the around histone proteins, it coil and supercoiling, then it form the chromosome. That's all about the composition of the chromosome. In summary, we can say chromosome is composed of the DNA, proteins, RNA, and metallic ions. That is the calcium and magnesium. DNA डबल स्टैंडर्ड है, उसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे. प्रोटीन्स दो टाइप्स की होती हैं, हिस्टोन प्रोटीन्स, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स. हिस्टोन प्रोटीन अगेन दो टाइप्स की हैं, उसमें कोर प्रोटीन्स और लिंकर प्रोटीन्स. और उसके अलावा फिर जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स को हम रेगुलेटरी प्रोटीन्स बोलते हैं. और उसके साथ आरएनए, थ्री टाइप्स ऑफ आरएनए हो सकते हैं. जब ये डीएनए न्यूक्लियस हिस्टोन प्रोटीन्स के आक्टा में करके अपने आप को बाइंड करेगा, न्यूक्लियोसोम बन जाएगा 10 नैनोमीटर. देन अगेन कॉइलिंग होगी, फिर क्रोमेटिन 30 नैनोमीटर. देन further coiling and super coiling 300 nanometer, 700 nanometer, and 1400. That is the final chromosome size. Thank you so much.